Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Azam Ali, subject specialist mathematics at DPS and Inter College Sahiwal. I welcome you online classes. Let's start our today's lesson. Chapter number 4, Algebraic expressions and algebraic formulas. Topic, rationalization of surds. Exercise number 4.4, question number 1 to 4. Learning objectives. Today's lesson are: explain the surds of second order, use basic operations on surds of second order to rationalize the denominators and evaluate it. The second objective is explain rationalization of real numbers of the type 1 divided by a plus b into square root of x, 1 divided by square root of x plus square root of y, and their combinations where x and y are natural numbers and a and b are integers. Before discussing today's lesson, we need previous knowledge. Surds. An irrational radical with rational radicand is called a surd. Hence, the radical nth root of a is a surd if a is rational. The result nth root of a is irrational. For example, cube root of 7, fourth root of 10, square root of 3, square root 2 divided by 5 are surds, but square root of pi and square root of 2 plus 17 square root are not surds, because pi and 2 plus square root of 17 are not rational. Note that for the surds nth root of a, n is called surd index or the order of the surd, and the rational number a is called the radicand. Cube root of 7 is third order surd. Second order surds are surd with index of root 2 is called a second order surd. For example, square root of x, square root of 3, square root of 7, square root of 5 are the second order surds. Rationalization of surds. Definitions. Number 1, a surd which contains a single term is called a monomial surd. For example, square root of 2, square root of 3, etc. ऐसा सर्ड जो एक ही टर्म रखता है उसको हम मोनोमियल सर्ड कहते हैं. जैसा कि एग्जांपल में देख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक ही टर्म है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक ही टर्म है, सो ये हमारे पास मोनोमियल सर्ड होंगे. सेकंड डेफिनेशन इज a surd which contains sum of two monomial surds or sum of a monomial surd and a rational number is called a binomial surd. एक ऐसा सर्ड जो रखता हो सम ऑफ टू मोनोमियल्स सर्ड्स, और या फिर मोनोमियल सर्ड और रैशनल नंबर्स का सम जो होगा वो बाइनोमियल सर्ड कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मोनोमियल सर्ड है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी मोनोमियल सर्ड है, दोनों का सम जो होगा वो बाइनोमियल सर्ड कहलाएगा. या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड प्लस रैशनल नंबर. मोनोमियल सर्ड
और रैशनल नंबर का सम जो होगा वो भी बाइनोमियल सर्ट कहलाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 8 एक्सेट्रा, we can extend this to definition of a trinomial surd। अगर हम इसी डेफिनेशन को एक्सटेंड करें तो हमारे पास ट्राइनोमियल सर्ट आ जाएगा। यहाँ पे एक और टर्म ऐड कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 कर दें, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 कर दें, तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल सर्ट्स बन जाएंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स इज अ रैशनल नंबर, अगर हमारे पास टू सर्ट्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो रैशनल नंबर होगा, देन ईच सर्ट, तो फिर हम हर सर्ट को कहेंगे कि वो रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं एक दूसरे के। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ट बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर टू गेट अ रैशनल नंबर as product is called rationalization of the given surds। ऐसा अमल जब हम सर्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो हमारे पास रैशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो आएगा, तो हम उसको कहेंगे कि ये रैशनलाइजेशन है गिवन सर्ट की। टू बाइनोमियल सर्ट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरिंग ओनली इन साइन connecting their terms are called conjugate surds। हमारे पास अगर दो बाइनोमियल सर्ट्स हैं और सेकंड ऑर्डर के, तो वो डिफर कर रहे हो सिर्फ साइन के साथ, connecting their terms are called conjugate surds। For example, square root of a plus square root of b and square root of a minus square root of b are conjugate surds of each other because पहला जो बाइनोमियल सर्ट्स है उसके साथ जो प्लस का साइन है और जो दूसरा बाइनोमियल सर्ट्स है उसके साथ माइनस का साइन है, दोनों ऑपोजिट साइन के साथ सर्ट्स हैं हमारे पास बाइनोमियल सर्ट्स, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इज x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y। स्क्वायर रूट और सर्ड वाली जो टर्म होगी उसके साथ जो साइन होगा हम उसको चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ट्स स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी होल स्क्वायर। Here we use the identity a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। So we have square root of a whole square minus square root of b whole square। square root से कैंसिल आउट हो जाएगा, a minus square root of square से कैंसिल, a minus b is a rational quantity independent of any radical। Similarly, the product of a plus b into square root of m and its conjugate a minus b into square root of m has no radical। For example, 3 plus 5 square root, 3 minus 5 square root is equal to 3 square minus square root of 5 whole square। यहाँ पर भी आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 स्क्वायर 3 3 are 9 minus 5 is equal to 4 which is a rational number। Rationalizing a denominator, keeping the above discussion in mind, we observe that in order to rationalize a denominator of the form a plus b into square root of x or a minus b into square root of x, we multiply both numerator and denominator by the conjugate factor a minus b into square root of x or a plus b into square root of x। By doing this, we eliminate the radical and thus
obtain a denominator free of surd। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ जब हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें से रेडिकल जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास डिनोमिनेटर जो होगा वो फ्री ऑफ सर्ड होगा, यानी डिनोमिनेटर में से सर्ड जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारे पास। रैशनलाइजिंग रियल नंबर ऑफ द टाइप्स 1 over a plus b into square root of x, 1 over square root of x plus square root of y। जब भी हमारे पास इस टाइप के जो नंबर्स होंगे उसको रैशनलाइज करना है, देन ये बाइनोमियल सर्ड्स है डिनोमिनेटर के अंदर, हम इसका कॉन्जुगेट लेके इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। देन न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, देन हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सेम सेकंड नंबर जो दिया गया है यहाँ पे 1 over square root of x plus square root of y, बाइनोमियल सर्ड्स है ये भी, हम इसका कॉन्जुगेट लेके डिनोमिनेटर का उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, देन आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आइए देखते हैं। फॉर दिस एक्सप्रेशंस 1 over a plus b into square root of x, 1 over square root of x plus square root of y and their combinations where x, y are natural numbers and a, b are the integers. Rationalization is explained with the help of examples। आइए हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, rationalize the denominator 58 divided by 7 minus 2 into square root of 5। अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ड्स गिवन है हमें, 7 minus 2 into square root of 5 का कॉन्जुगेट क्या होगा, डिफर बाय देयर साइन। तो माइनस का ऑपोजिट साइन जो है वो हमें मेरे पास प्लस होता है, तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा 7 plus 2 into square root of 5। तो हम इसको 7 plus 2 into square root of 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सॉल्यूशन 58 divided by 7 minus 2 into square root of 5। To rationalize the denominator, we multiply both numerator and denominator by the conjugate 7 plus 2 into square root of 5 of 7 minus 2 into square root of 5, that is 58 divided by 7 minus 2 into square root of 5 is equal to 58 divided by 7 minus 2 into square root of 5 multiply by 7 plus 2 into square root of 5 divided by 7 plus 2 into square root of 5। अब हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर्स में देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर a इज इक्वल टू 7 है, b इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 2 into square root of 5 whole square। By using this identity, we have 58 multiplied by 7 plus 2 into square root of 5 divided by 7 square 49 minus 2 square into square root of 5 whole square। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 इक्वल टू 58 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 20। रेडिकल इज एलिमिनेटेड इन द डिनोमिनेटर। आप देख सकते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में अब जो सर्स जो है और रेडिकल का जो साइन है वो रिमूव हो गया है, एलिमिनेट हो गया है बाय रैशनलाइजेशन। सो वी हैव 58
multiply by 7 plus 2 into square root of 5 divided by 29. 21 1 hours 29, 29 2 hours 58, कटिंग हो जाएगी 2 into 7 plus 2 into 5 square root. So required answer आ जाएगा आपके पास 2 multiply by 7 plus 2 into square root of 5. Exercise number 4.4. Question number 1. Rationalize the denominator of the following. Number 1. 3 divided by 4 into square root of 3. Solution. 3 divided by 4 square root of 3. अब आप देखें यहाँ पे 3 raised to the power 1 को हम लिख सकते हैं 3 raised to the power 1 by 2 multiply by 3 raised to the power 1 by 2, यानी square root of 3 multiply by square root of 3 divided by 4 into square root of 3. square root of 3 न्यूमरेटर में और square root of 3 डिनोमिनेटर में, ये दोनों फैक्टर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3 square root over 4. सो डिनोमिनेटर में देखें अब आपके पास सर्व और जो रेडिकल था वो रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा हमारे पास. सो द रिक्वायर्ड आंसर इज square root of 3 divided by 4. Part 3. 6 divided by square root of 8 into square root of 27. Solution. 6 divided by square root of 8 square root of 27 is equal to 6 divided by 4 multiplied by 2. 8 को आप लिख सकते हैं 4 multiplied by 2 square root. 27 को हमने लिखा 9 multiplied by 3 square root. Now 6 divided by square root of 4 square root of 2 square root of 9 into square root of 3. हमने ये रिजल्ट यूज किया है nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय nth रूट ऑफ b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a b. प्रोडक्ट था उसका हमने अलग अलग स्क्वायर रूट ले लिया, फिर 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे ही लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी वैसे ही लिख देंगे. ये आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आर 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट. अलग अलग था उसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं बाय दिस रिजल्ट. सो वी हैव 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6. 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6. अब आप देखें अभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है वो रेडिकल का साइन आ रहा है, इसको हमने एलिमिनेट करना है. सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6. हम क्या करेंगे 6 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6. यहाँ पर 6 रेज टू द पावर 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 6 रेज टू द पावर 1 by 2. जब बेस एक जैसे होंगे तो हमारे पास पावर ऐड हो जाएंगी. सो 6 रेज टू द पावर हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 6. तो वो आपके पास पूरा 6 रेज टू द पावर 1 आ जाएगा यहाँ पे. तो 6 स्क्वायर रूट ओवर 6. दैट इज रिक्वायर्ड आंसर. पार्ट 7. स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1. अब आप देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बाइनोमियल सर्ट हमें गिवन है, हमने रैशनलाइज करना है इसको. तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे. सॉल्यूशन देखते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1. टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट square root of 3 minus 1 of square root of 3 plus 1 equal to square root of 3 minus 1 divided by square root of 3 plus 1 multiply by square root of 3 minus 1 divided by square root of 3 minus 1. डिनोमिनेटर पर अब आपके पास डिनोमिनेटर था square root of 3 plus 1, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा
इसका कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। तो हमने उसको न्यूमरेटर को उससे मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू a minus b into a minus b whole square. So we have square root of 3 minus 1 whole square divided by a plus b into a minus b। यहाँ पर a square minus b square वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। So we have square root of 3 whole square minus 1 square। यहाँ पर a minus b whole square वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। a minus b whole square is equal to a square माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा और b की जगह पे 1 आ जाएगा। सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी हैव 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 equal to 3 plus 1 minus 2 into square root of 3 divided by 2. 3 plus 1 4 minus 2 into square root of 3 over 2. Taking 2 as common in numerator, so we have 2 into 2 minus square root of 3 divided by 2. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है फाइनल हमारे पास आंसर, उसके डिनोमिनेटर में से रेडिकल जो था वो एलिमिनेट हो गया आफ्टर रैशनलाइजेशन। पार्ट 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सॉल्यूशन square root of 5 plus square root of 3 divided by square root of 5 minus square root of 3. To rationalize the denominator, we multiply both numerator and denominator by the conjugate square root of 5 plus square root of 3 of square root of 5 minus square root of 3. रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हम उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय square root of 5 plus square root of 3 divided by square root of 5 plus square root of 3 is equal to न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, बेस सेम होंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम यूज करेंगे a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 5, उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगे और न्यूमरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी जो है उसको आप ओपन करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर प्लस 2ab, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस b स्क्वायर, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट, 5 प्लस 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होल स्क्वायर रूट प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 आपके पास हो जाएगा 2। यहाँ पे रिजल्ट यूज किया, इसको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट हो जाएगा आपके पास। 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 इंटू 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2,
taking 2 as common in numerator, so we have 2 into 4 plus 15 square root divided by 2. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 प्लस 15 स्क्वायर रूट रिक्वायर्ड आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास सर्ट्स जो थे वो रिमूव हो गए हैं, एलिमिनेट हो जाएंगे, रेडिकल साइन हमारे पास डिनोमिनेटर में से एलिमिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉन्जुगेट of x plus square root of y. Part 1, 3 plus square root of 7. Solution 3 plus square root of 7. Conjugate फाइंड आउट करना है। conjugate की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, साइन चेंज कर देंगे, जो टर्म हो गया आपके पास स्क्वायर रूट वाली रेडिकल साइन वाली, उसका जो साइन था उसको आप चेंज कर देंगे तो आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। पार्ट 8, 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा आपके पास, कॉन्जुगेट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1, इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, फाइंड 1 ओवर x। आपके पास गिवन है x की वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, फाइंड आउट करना है आपने 1 डिवाइडेड बाय x। सॉल्यूशन में देखते हैं, गिवन दैट x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, दैट इज x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1। जैसा कि हम जानते हैं डिनोमिनेटर में इज ऑलवेज 1, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1। अब आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 ओवर x। 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय आफ्टर रेसिप्रोकल वी हैव 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका कॉन्जुगेट लेना है। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, उससे आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल है आपके पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So we have 2 plus square root of 3 divided by 2 square minus square root of 3 whole square. A is equal to 2, B is equal to square root of 3. तो जहां जहां फार्मूले में A होगा वहां आप उसकी वैल्यू 2 रिप्लेस कर देंगे, जहां B होगा वहां स्क्वायर रूट ऑफ 3 रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में गिवन है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट 3 इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप देख सकते हैं 1 ओवर x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। डिनोमिनेटर में से हमने बाइनोमियल सर्ट को एलिमिनेट कर दिया है, तो 1 ओवर x आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। पार्ट 3, इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2, फाइंड x प्लस 1 ओवर x। Solution, given that x is equal to square root of 3 plus 2, इसको आप क्वेश्चन 1 का नेम दें, x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1। x के डिनोमिनेटर में भी 1 है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 के डिनोमिनेटर में भी 1 होगा, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2। देन हम इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे,
फिर हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। Here we use a plus b into a minus b is equal to a square minus b square in denominator. So we have square root of 3 minus 2 divided by square root of 3 whole square minus 2 whole square. Square root of 3 minus 2 divided by 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, -1 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। 1 ओवर x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 इक्वल टू, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस का हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का हो जाएगा। सो वी अरेंज कर लेंगे इसको, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको आप इक्वेशन 2 का नेम देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइड बाय साइड वी हैव x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस और माइनस ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आ जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई पार्ट 1, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, बेटा हम यहाँ पे हर टर्म का जो डिनोमिनेटर है आप देखें बाइनोमियल सर्ट गिवन है इन डिनोमिनेटर, सो वी टेक कॉन्जुगेट, तो हम उसके कॉन्जुगेट लेके हर टर्म को उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जो कॉन्जुगेट है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इन नेक्स्ट स्टेप अब यहाँ पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन डिनोमिनेटर वी यूज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज बेटा देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिनोमिनेटर्स में स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड आपको गिवन है, हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। सो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो बेटा ये डिनोमिनेटर में बनेगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, प्लस सेम सेकंड टर्म न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, बेटा डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म है, बेटा आपने इसको लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2,
स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. Taking 2 as LCM, we have square root of 5 minus square root of 3 प्लस प्रोडक्ट है तो हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 स्क्वायर रूट माइनस 6 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट. प्रोडक्ट है तो हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 2 5 आर 10 स्क्वायर रूट माइनस 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2. सेम टर्म विद अपोजिट साइन कैंसिलिंग ईच अदर, सो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल आउट हो जाएंगी, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगी. हमारे पास जो टर्म बचेंगी वो है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2. 1 प्लस 1 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर से सेम फैक्टर्स जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. पार्ट 3 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2. हर टर्म के डिनोमिनेटर से कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट. तो हम उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. सेम सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. उससे आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो आप उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. डिनोमिनेटर में देखें आप आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. हर टर्म के डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके आप उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. सो वी हैव 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस square root of 3 minus square root of 2 divided by square root of 3 whole square minus square root of 2 whole square minus 3 into square root of 5 minus square root of 2 divided by square root of 5 square minus square root of 3 whole square. डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो 5 माइनस 3 3 माइनस 2 और 5 माइनस 2 डिनोमिनेटर्स में रह जाएगा. तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में पहले डिनोमिनेटर में 2, दूसरे में 1, तीसरे में भी 3. सो सेम फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस यहाँ पे माइनस का साइन है ब्रैकेट से पहले, जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे. सो वी हैव square root of 5 minus square root of 3 plus square root of 3 minus square root of 2 minus square root of 5 plus square root of 2. ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी. रिक्वायर्ड आंसर इज 0. Recapitulation. Today we learn rationalization of surds, rationalizing a denominator, rationalizing real number of the types 1 over a plus b into square root of x or 1 divided by square root of x plus square root of y, and solve exercise number 4.4 question number 1 to 4. Home assignment. Question number 1, rationalize the denominator of the following.
Part 2, 14 divided by 98 square root. Part 4, 1 over 3 plus 2 into square root of 5. Part 5, 15 divided by 31 square root minus 4. Question number 2, find conjugate of the following: 4 minus 5 square root. Part 3, 2 plus square root of 3. Part 4, 2 plus square root of 5. Part 5, 5 plus square root of 7. Part 6, 4 minus square root of 15. Part 7, 7 minus square root of 6. Question number 3, part 2, if x is equal to 4 minus square root of 17, then find 1 over x. Question number 4, simplify 1 over 2 plus square root of 3 plus 2 over square root of 5 minus square root of 3 plus 1 over 2 plus square root of 5. Thank you.